آداب عرض ہے ناظرین، MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں غوث محی الدین۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ آج پھر آصفیہ کالونی کی ایک 39 سالہ خاتون کی رپورٹ کووڈ-19 کے لیے آئی مثبت۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد ہوئی 52، ایک 60 سالہ مریضہ کی موت واقع، تو 17 سالہ مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد کیا گیا ڈسچارج۔ معروف فلم اداکار شاہ رخ خان نے دیے AMC ہیلتھ انتظامیہ کو 2500 PPE کٹس۔ میونسپل ہیلتھ آفیسر اور انتظامیہ کی پریشانی ہوئی دور۔ موجودہ میونسپل باڈی کی میعاد ہو رہی ہے ختم۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے حکومت کو ایڈمنسٹریٹر نامزد کرنے کا دیا مشورہ۔ AMC انتظامیہ کو حکومت کے فیصلے کا انتظار۔ اور مقدس ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے جاری۔ اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا ہے موقع۔ فضول کاموں میں وقت گزاری کی بجائے بندگان توحید رکھے خود کو عبادتوں میں مصروف۔ مفتی محمد محسن کا مشورہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ آصفیہ کالونی کی ایک 39 سالہ خاتون کی رپورٹ۔ آصفیہ کالونی کی ایک 39 سالہ خاتون کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہے۔ اس طرح شہری حدود میں اس مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 52 ہو گئی ہے، جن میں سے آج ایک اور خاتون مریضہ جاں بحق ہو گئی۔ اس طرح کووڈ-19 نے شہر میں اب تک 6 افراد کی جان لے لی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ شام آصفیہ کالونی کی ایک 39 سالہ خاتون کی رپورٹ کووڈ-19 کے لیے پازیٹیو آئی ہے۔ اس طرح سے شہری حدود میں مریضوں کی تعداد 52 ہو گئی ہے۔ گزشتہ شام گھاٹی دواخانے کے لیب سے جو رپورٹ جاری کی گئی، اس میں 3 مریضوں کے نمونے کووڈ-19 کے لیے پازیٹیو بتائے گئے، مگر ان 3 میں سے صرف ایک مریضہ کا تعلق اورنگ آباد شہر سے ہے، جبکہ ایک مریضہ دولت آباد کی ساکن ہے، تو ایک مریضہ کا تعلق ضلع ناندیڑ سے ہے۔ آج گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں زیر علاج خلع ارق کی 60 سالہ مریضہ کی دوران علاج موت واقع ہو گئی۔ یہ خاتون 25 اپریل کو گھاٹی دواخانہ میں شریک کی گئی تھی۔ یہ اطلاع ڈین ڈاکٹر کانن ایڈیکر نے دی۔ ڈین کے مطابق یہ مریضہ لیفٹ سائیڈڈ نیمونائٹس وتھ ڈائبٹیز وتھ ہائپرٹینشن وتھ ہائپوتھائرائڈزم جیسے امراض میں مبتلا تھی۔ 25 اپریل کو داخلے کے بعد اس مریضہ کے تھروٹ سویب کی جانچ کی گئی تو وہ کووڈ-19 کے لیے پازیٹیو پائی گئی تھی، اور آج اس مریضہ نے دوران علاج دم توڑ دیا۔ اس طرح کورونا وائرس نے اب تک شہر کے 6 افراد کی جان لے لی ہے، جبکہ آج سول ہاسپٹل میں زیر علاج بائی جی پورہ کے 17 سالہ مریض کی رپورٹ نگیٹو آنے کے بعد اسے ڈسچارج دے دیا گیا۔ اس طرح اب تک 23 مریضوں نے کووڈ-19 کو شکست دے دی ہے، اور اب بھی گھاٹی اور سول ہاسپٹل میں 23 مریض زیر علاج ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں کہ ہم کرونا کے پیشنٹ ڈھونڈنے کے لیے ساری کے پیشنٹ کو بھی چیک کرتے ہیں، ان کو بھی سواب لے کے کرونا پازیٹیو ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں، اور ساری کے پیشنٹ کی بھی جو شہر میں کچھ ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ دیکھا جائے تو ان کو پہلے سے کوئی لنگ کی بیماری ہوتی ہے، استھما بولو، کوئی الگ طریقے سے ریسپیریٹری سسٹم کا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی کوموربیڈیٹی جو بولتے ہیں کہ ساتھ میں کوئی اور ایک بیماری بھی رہے، تو اس طرح سے ان کا ریزسٹنس لو ہو جاتا ہے اور ترنت ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور تھوڑا سا بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس سے پیشنٹ۔ اب تک کے کرونا سے اپنے شہر میں 6 ڈیتھ ہوئے ہیں، اور پورے سے 52 پازیٹیو پیشنٹس ہیں اس میں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پنچکوا شہر میں تو الگ الگ حصے میں سے پیشنٹ نکل رہے ہیں، تو پنچکوا ایریا میں سے بھی ایک پیشنٹ پرسوں ڈائگنوز ہوا تھا جو گھاٹی میں بھرتی تھی، مہیلا ہی تھی 60 سال کی، اور ان کو ساتھ میں اور بیماری تھی، ان کو ہائپرٹینشن، ڈائبٹیز، کڈنی کا بھی کوئی پرابلم تھا،
तो कोरोना इन्फेक्शन से और उसके इतने सारे उसमें बीमारी के रहने से उनकी तबीयत में कोई सुधारना नहीं हुई। आज मुझे ये कहने को बहुत दुख होता है कि उनकी आज इंतकाल हो गया है अभी दोपहर में, मगर उनको बचाने की ट्रीटमेंट की पूरी तरह से घाटी में से कोशिश की गई थी। ये बता सिविल हॉस्पिटल में जो मुंबई से आए वाला एक 17 साल युवक था जो पॉजिटिव आया था, उसकी भी ट्रीटमेंट पूरी तरह से हुई, उनकी तबीयत अच्छी है। आज उनको सिविल हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज दिया। मारूफ फिल्म अदाकार शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन ने म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया को 2500 PPE किट्स डोनेट किए। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मेडिकल मिशनरी को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कोविड-19 से मुतासरा मरीज़ों के इलाज और उनके थ्रोट स्वैब नमूनों की जांच के अलावा उनकी स्क्रीनिंग, आइसोलेशन वार्ड्स, क्वारंटीन वार्ड्स, फीवर क्लिनिक, कोविड केयर सेंटर, हर तरह की सहूलतें फराहम करने की हुकूमत व इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, मगर फ़ंड की कमी के सबब कोरोना के ख़िलाफ़ छेड़ी गई जंग के असल सिपाही यानी डॉक्टर्स और दीगर मेडिकल स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरकार PPE किट्स की क़िल्लत है। लिहाजा इस मामले में मारूफ फिल्म अदाकार शाहरुख खान ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और उनकी तंजीम मीर फाउंडेशन के तहत म्युनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया को 2500 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स फराहम किए गए हैं, जो म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर के सुपुर्द किए गए। म्युनिसिपल ज़राए के मुताबिक ये किट्स कंटामिनेटेड इलाक़ों में तहक़ीक़ात के लिए जाने वाले हेल्थ मुलाजिमीन के अलावा सिविल हॉस्पिटल और घाटी इंतज़ामिया को भी दिए जाएंगे। जो अपने शहर में कोरोना का प्रादुर्भाव तो बढ़ रहा है, हमारे तरफ से भी सब जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट जो कंज्यूमेबल सब लगते हैं वो ले जा रहे हैं, मगर जितना भी ले उतना कम है, इसलिए काफ़ी खासगी संस्थाएं NGOs आगे आ रहे हैं, हमको उसका सपोर्ट मिल रहा है। इसी जैसा जो मीर फाउंडेशन है, शाहरुख खान की एक्ट्रेस जो है उनकी जो मीर फाउंडेशन है, उनके तरफ से राजेश्री देशपांडे जो एक्ट्रेस है, उन्होंने भी उनसे ये रिक्वेस्ट करके उनसे हम अपने शहर के लिए 2500 PPE किट अपने को कल डोनेट किए हैं। इससे बिल्कुल ज़रूर अपने सबको फ़ायदा हो जाएगा उससे, और जो सर्विस देने में अपने को बहुत उसकी हेल्प हो रही है। तो ऐसा ही ये बहुत उन्होंने सिर्फ बताया है, राजेश्री देशपांडे मैडम ने, कि शाहरुख खान से रिक्वेस्ट की कि हमको हमारे शहर के लिए चाहिए दिए, तो इन्होंने तुरंत अपने को एक 2500 PPE किट और अच्छे क्वालिटी के जो ऑथराइज्ड है और उस क्वालिटी के अपने को मिले हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हम सबके तरफ से धन्यवाद करते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने आज खिले अरक में वाक़े समाज कल्याण डिपार्टमेंट के बॉयज़ हॉस्टल में बनाए गए फीवर क्लिनिक और क्वारंटीन सेंटर को विजिट दी और वहां किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए AMC इंतज़ामिया ने शहरियान की सहूलत के लिए 13 मकामात पर फीवर क्लिनिक क़ायम किए हैं, जहां मुश्तबा मरीज़ों को क्वारंटीन रखने की सहूलत भी फराहम की गई है। समता नगर इलाके में कोरोना का ज़ोर बढ़ने लगा है, लिहाजा यहां के मरीज़ों के राब्ते में आए 80 अफराद को AMC इंतज़ामिया ने यहां क्वारंटीन किया था, मगर पहले दिन यहां उनके खाने पीने के इंतज़ामात न होने से मुतल्लिक़ा मुतासिरीन ने शिकायत की थी, जिसके बाद सरकारी मिशनरी हरकत में आ गई थी और डिविज़नल कमिश्नर सुनील केंद्रे के अलावा म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने यहां पहुंचकर हालात का जायज़ा लेने के बाद मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को ज़रूरी हिदायत दी थी। आज म्युनिसिपल कमिश्नर ने यहां दोबारा विज़िट दी और मरीज़ों की तिब्बी जांच के लिए किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इसी तरह यहां क्वारंटीन किए गए शहरियान को मुहैया की गई सहूलतों का भी उन्होंने जायज़ा लिया। उन्हें फराहम किए जा रहे खाने का म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने जायका भी चखा और मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और ज़रूरी हिदायतें भी दी। ताल्लुक़ा औरंगाबाद और ताल्लुक़ा हेल्थ ऑफिसर ने आज गोलटगांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर विजिट दी और वहां कामकाज का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जहां शहरी हुदूद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स और फीवर क्लिनिक शुरू किए गए हैं, इसी तरह इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए देही मकामात पर भी इंतज़ामात किए गए हैं। आज ताल्लुक़ा औरंगाबाद के तहसीलदार
डॉक्टर कृष्णा कानगुले और तालुका हेल्थ ऑफिसर एस दाते ने गोलटगांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर को विजिट दी, जहां बाहर से आने वाले शहरियान के अलावा कोरोना के मुश्तबा मरीजों को क्वारंटीन किया जा रहा है। इन अफसरान ने न सिर्फ यहां किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया, बल्कि आशा वर्कर्स और दीगर हेल्थ मुलाजिमीन की जानिब से किए जा रहे सर्वे से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की। इस मौके पर सरपंच, ग्राम सेवक, पुलिस पाटिल और पंचायत अराकीन भी मौजूद थे। मौजूदा म्यूनसिपल बॉडी की मियाद 28 अप्रैल को ख़त्म होने जा रही है, लिहाजा हुकूमत की जानिब से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा म्यूनसिपल बॉडी की मियाद 28 अप्रैल को ख़त्म होने जा रही है, लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम भी जाहिर कर दिया था, मगर कोरोना वायरस की धमक के सबब हुकूमत व इंतज़ामिया ने आम इंतखाबात पर ताहुक्म सानी स्टे दे रखा है। लिहाजा 28 अप्रैल को मौजूदा ओहदेदारान व अराकीन की मियाद ख़त्म हो जाने के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कामकाज संभालने के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दरमियान ख़त व किताबत का सिलसिला जारी है और क़ानून के मुताबिक यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द किए जाने से मुताल्लिक़ मशवरा रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने हुकूमत को दिया है, जिसके बाद इस बात का इम्कान है कि मौजूदा बॉडी की मियाद ख़त्म हो जाने के सबब आइंदा इलेक्शन होने तक यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द किया जाएगा। म्यूनसिपल इंतज़ामिया को इस ज़िमन में हुकूमत के मकतूब का इंतज़ार है। हैथवे एमसीएन की जानिब से आज मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन और भारत नगर के ज़रूरतमंद अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि हैथवे एमसीएन के ज़िम्मेदारान ने अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी पूरी करने का इरादा किया और लॉकडाउन के सबब ज़रूरतमंद और गरीब अफराद की मदद करने का फ़ैसला करते हुए रोज़ाना 1000 ज़रूरतमंद अफराद में फ़ूड पैकेट्स तकसीम करने का फ़ैसला किया, जिसके तहत आज मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन और भरत नगर इलाके के ज़रूरतमंद साकिनान में फ़ूड पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर हैथवे एमसीएन के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दत्ता जाधव, एमसीएन न्यूज़ के चीफ एडिटर देव शेजुड़, मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर घनश्याम सोनौने, गणेश गए, केशव भोंबे, संजय भारसाखड़े और अभिजीत जोशी भी मौजूद थे। आज एमसीएनच्या आणि कम्युनिटी पोलिसिंगच्या वतीने या ठिकाणी गरजवंत लोकांना 1500 फूड पॉकेटचं वाटप करण्यात आलेलं आहे। वाटप करते वेळेस कुठल्याही नियमाची पायमल्ली होणार नाही याची वाजवी काळजी घेण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर लोकांमध्ये अवेअरनेस जनजागृती देखील केलेली आहे। एमसीएनचे देव शेजू आणि कम्युनिटी पोलिसिंगचे यांच्यासोबत काम करणारे डॉक्टर किशोर उडान सर यांच्या वतीने आज जे काही फूड पॉकेट देण्यात आलेलं आहे त्यामुळे लोकांवरच्या चेहऱ्यावरती जे समाधान दिसत आहे अबालवृद्धांच्या, ही बाब अतिशय सुखावह आहे आणि याला याचे सर्व श्रेय माननीय पोलीस आयुक्त श्री चिरंजीव प्रसाद सर यांना जात आहे। तर मी सर्वांना सांगण्यास मला या ठिकाणी आनंद होत आहे की असं म्हटलं जातं की 1000 लोकांमध्ये एखादा पंडित असतो, 10,000 लोकांमध्ये उत्तम वक्ता असतो, एखादा शूर असतो। तसं दातृत्व किंवा दानशूर व्यक्ती हे फारच कमी असतात, विरळ असतात। पण औरंगाबाद या शहरामध्ये जे संतांनी आणि जी ऐतिहासिक परंपरा आहे किंवा संतांची जन्मभूमी कर्मभूमी आहे, एक चांगले संस्कार रुजवलेले आहेत। त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळामध्ये या ठिकाणी अतिशय जाती आणि सामाजिक सलोखा दिसून आलेला आहे। त्याचबरोबर मानवीयतेचा जो गुण आहे सर्व राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वांनी समाजकारण जोपासलेलं आहे आणि आम्हा पोलिसांना चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे। यामुळे मला या ठिकाणी सांगण्यास फार अति आनंद होत आहे आणि आपण नक्कीच यामुळे कोरोनाशी चांगला लढा देत आहोत, कोरोनावरती विजय प्राप्त करत आहोत। त्या अनुषंगाने आपली वाटचाल चालू आहे। जय हिंद। सर्व दातृत्वांचे मी पुनश्च आभार व्यक्त करतो। माह रमज़ान को माह सियाम भी कहा जाता है। इस मुक़द्दस महीने के पहले अशरे की क्या अहमियत है और इस अशरे में कौन कौन सी इबादतें अफजल हैं, ये जानने के लिए आज हमने बात की मुफ्ती मोहसिन अहमद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व वफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं। जैसे गुज़श्ता उम्मतों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े रखे थे, ऐसे ही हम पर ये रमज़ानुल मुबारक के चंद रोज़े हैं। ये रोज़े बहुत आसान भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बाबरकत भी बनाया है। दुनिया और आखिरत हर तरह की बरकत लिए हुए रमज़ानुल मुबारक है। दुनियावी एतबार से अगर हम देखेंगे, अल्लाह ताला ने इसमें सेहत रखी है, बीमारियों से हिफाजत रखी है। डॉक्टरी और साइंस के एतबार से इंसान के लिए रोज़ा रखना, इंसान के लिए कम खाना उसकी सेहत के लिए ज़्यादा सेहत बख्श है। और अगर हम आखिरत के एतबार से देखेंगे तो हमारे नबी ने ये फरमाया है, हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह ताला ख़ुद इसका बदला देते हैं। और नबी ने ये भी फरमाया कि ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इसी अल्लाह ने बहुत बड़ी इबादत इसमें तरावी की रखी है। नबी ने ये भी फरमाया, जो तरावी पढ़ता है तो तरावी का ये अमल उसके पिछले सारे गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है। हम मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला काश हमें इसकी कदरदानी हम करते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इसकी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नबी ने तो ये फरमाया कि अगर तुम्हें हकीकी माना में इसका इदराक हो जाए, सही माना में तुम समझ लो कि रमज़ान क्या है, तो तुम ये तमन्ना करने लगो कि काश साल भर रमज़ान हो जाए। ख़ास तौर पर ये पहला अशरा, इसको नबी ने ये फरमाया कि ये पहला अशरा रमज़ान के पहले 10 दिन रहमत के 10 दिन है। इसलिए अब ज़रूरत हमारी ये है कि हम इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब लौ लगाए। ज़िंदगी के कितने हालात ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर इंसान चाहते हुए भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं हो पाता, लेकिन ये एक मौका है हम अपने पिछले गुनाहों से माफ़ी मांगे। इसके लिए चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त हम इस्तिग़फ़ार करें। दूसरा काम, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत मांगे, जहन्नम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि हमारी हिफाजत फरमाएँ। और तीसरे रमज़ानुल मुबारक में खूब हम तिलावत का अहतमाम करें। कुरान पाक को रमज़ानुल मुबारक से बहुत अहतमाम, बहुत ज़्यादा मुनासबत है। हत्ता कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना, जब इसका तारुफ़ अल्लाह ताला ने कराया, कौन सा महीना रमज़ान का, जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम कुरान पाक की तिलावत करें। इन 10 दिनों का हम खूब एहतमाम करें। ये अल्लाह की तरफ से सराफ़ा रहमत है। फिर इसके बाद के 10 दिन मग़फ़िरत के होंगे और उसके बाद के 10 दिन अल्लाह की जानिब से जहन्नम से खुलासी के होंगे। कोरोना वायरस के हालात चल रहे हैं, हम ये यकीन कामिल रखते हैं कि अगर अल्लाह की बारगाह में हमारी तौबा कबूल हो गई तो हमारी ये तौबा सारी इंसानियत को कोरोना वायरस से निजात दिलाएगी। ख़ास तौर पर हमारे नबी ने ये भी फरमाया, ये गरीबों के साथ में मुदारात, उनका ख़याल रखने का ज़माना है। मैं औरंगाबाद के सारे अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कहूँगा कि अड़ोस पड़ोस के गरीबों का ख्याल करें। आपके अतराफ़ में अगर हमारे हिंदू भाई बरादरान वतन रहते हैं, उनका भी ख़ास ख्याल रखें। यकीन जानिए आपका ये किरदार और आपका ये अमल इस मुल्क में मुसलमानों के सबात और क़रार के लिए बहुत असासी और बुनियादी साबित होगा। बहुत ज़्यादा इस तरफ तवज्जो फरमाएँ कि हम अपने बरादरान वतन का भी ज़रूर ख्याल रखें। हमारे ख़िलाफ़ जो नफ़रतें फैलाई जा रही है, ये उसका सबसे बेहतरीन इलाज भी है और इस्लाम का चेहरा और इस्लाम की तर्जमानी भी है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें तमाम हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रमज़ान मुबारक की क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकारी राशन दुकानों पर अनाज की तक़सीम के लिए सुबह 8 ता शाम 6 बजे तक का वक्त दिया जाए।
ये मुतालबा कांग्रेस कमेटी के नायब शहर सदर मोहसिन भैया पटेल ने ज़िला कलेक्टर से किया है। उनका कहना है कि हर राशन दुकान पर कार्ड होल्डर्स की तादाद 1.5 से 2,000 से ज़ायद ही है। उनमें बीपीएल कैटेगरी, एपीएल और दीगर कार्ड होल्डर्स का शुमार है। कांग्रेस कमेटी के नायब शहर सदर इब्राहिम भैया पटेल ने मेमोरेंडम के ज़रिए ज़िला कलेक्टर को बताया कि सरकारी राशन दुकानों पर 3 स्कीमों के तहत शहरियान को अनाज मुहैया किया जा रहा है। पहली स्कीम महाना राशन, दूसरी स्कीम मुफ्त राशन और तीसरी स्कीम के तहत ज़ाफ़रानी राशन कार्ड होल्डर्स को भी अनाज की तकसीम की जाती है। मगर लॉकडाउन के सबब राशन दुकानों पर सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक ही अनाज तकसीम किया जा रहा है, क्योंकि राशन दुकानदारों को खुसूसी सहूलत नहीं दी गई और 1 बजे पुलिस इंतज़ामिया उनकी दुकानें बंद करवा देता है, जिसकी वजह से दुकान पर आए सभी ग्राहकों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। बार बार पॉज मशीन हैंग हो जाती है, जिसकी वजह से दुकान पर हुजूम बढ़ जाता है। लिहाजा सरकारी राशन दुकानों पर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कामकाज जारी रखने की इजाज़त दी जाए। इस तरह मुक़द्दस माह रमज़ान के पेश नज़र दूध डेयरी और बेकरी आइटम के कारोबार के लिए दोपहर 3 से रात 9 बजे तक छूट दी जाए। आज औरंगाबाद शहर के कलेक्टर साहब को आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, औरंगाबाद शहर उपाध्यक्ष की तरफ से मैंने एक निवेदन दिया हो स्वस्थ धान्य दुकान के बारे में कि सुबह में 8 बजे से 1 बजे लॉकडाउन चालू है। सुबह में 8 बजे से तो 1 बजे तक दुकानें खुली रही थी। गए महीने में जो है हमने माल बांटे मई में, अप्रैल में, तो 7 बजे तक लॉकडाउन था, पूरा माल बटा। मगर अभी कमिश्नर साहब ने जो है 1 बजे तक बंद हो जा रहा सब। इसलिए हमने कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिए कि राशन दुकानों को दिन भर का टाइम दो। इसलिए टाइम देना ज़रूरी है उसको कि अभी फ़िलहाल में रनिंग महीने का माल वाटअप हो रहा, उसके बाद में फ्री का चावल दूसरी स्कीम का माल वाटअप करना है, उसके बाद में ये महीने से केसरी कार्ड को भी माल मिलने वाला है। तो इसलिए 3 स्कीम का माल हम बांट नहीं सकते दिन भर, उसको दिन भर का टाइम लगेगा। 4 और 5 घंटे अगर टाइम मिलेगा तो माल वाटअप नहीं होगा, और जब माल वाटअप नहीं होगा तो लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम खड़े होंगे। अनाज घर में रहना ज़रूरी है, बाकी की चीज़ कोई नहीं भी रही। अनाज घर में 5-25 किलो गरीब आदमी के घर में आ गया तो उसको एक सुकून हो जाता कि मेरे पास अनाज है, कोई टेंशन नहीं है। जब अनाज घर में नहीं रहेगा, उसके दुकान पे माल नहीं मिलेगा, टाइम की पाबंदी की वजह से माल होते, माल की कोई कमी नहीं, मगर माल होने के बाद भी अगर लॉकडाउन के अंदर दुकानें बंद रहेंगी तो उसका मसला खड़े रहेगा और लोग भीड़ लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है अमल नहीं होगा, दुकानदार भी परेशान होगा। दुकानदार भी एक जैसा डॉक्टर, पुलिस और कलेक्टर ऑफिस के लोग रोड पर मैदान में उतर के काम कर रहे, ऐसा स्वस्थ धान्य दुकानदार भी जो है रोड पे उतर के काम कर रहा है, पूरा परिवार उसका जुड़ा हुआ है। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब से मैं एक हदमंद गुजारिश करूँगा कि साहब इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर का टाइम दो इसके अंदर। और दूसरा मैंने एक निवेदन दिया पुलिस कमिश्नर साहब को, उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि रमज़ान का महीना है सर, सिर्फ एक बेकरी वालों को और एक दूध वालों को इनको एक थोड़ा टाइम बढ़ के देना चाहिए। इसलिए कि सर 1 बजे तक शुरू रहता सुबह से, और उसके बाद और 2 घंटे आपने दिए 3 से 5 बजे तक, तो उसको कम से कम 8 बजे तक दो, क्योंकि सुबह के टाइम में कोई भी दूध घर में लिया के नहीं रख सकता। शहरी के वास्ते हर मुसलमान के घर में एक मुख्य एक आइटम है वो, कि जैसा कि अपन सब्जी वब्जी नहीं भी रही तो दूध से काम चला लेता, 40-1 रुपये लीटर से दूध लिया के उसकी शहरी का इंतज़ाम हो जाता है। बहुत ज़रूरी है दूध का आइटम, ज़रूरत के काम से कहीं निकले बाहर तो मुँह को मास्क लगाए, और घर में कम से कम घर में रहने के बाद 8 से 10 बार कम से कम हाथ धोए। ये सब चीज़ों का पालन करेंगे तो अपन जो है कोविड को हराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे को उम्मीद है कि सब लोग जो है इस पर अमल करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। जब तक शहर में लॉकडाउन जारी है तब तक वार्ड नंबर 95 समेत शहर की सभी स्लम बस्तियों में टैंकरों के जरिए मुफ्त पानी सप्लाई किया जाए। ये मुतालबा मकामी कारपोरेटर और सोशल वर्कर राजाराम मोरे ने म्युनिसिपल इंतज़ामिया से किया है।
आज माननीय महापौर साहेबांना औरंगाबाद शहरातील राहणाऱ्या गोरगरीब काबाडकष्ट दीनदलित वर्गांना या ठिकाणी महापालिकेतर्फे ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठा पाईपलाईनद्वारे करण्यात येत नाही त्या ठिकाणी टँकरने केला जातो आणि तो टँकरने पाणी पुरवठा 3 जूनपर्यंत महापालिकेतर्फे मोफत करण्यात यावा. नागरिकाकडून कसल्या प्रकारचे हमीपत्र त्या ठिकाणी घेण्यात येऊ नये एवढी मागणी या ठिकाणी आम्ही महापौर साहेबांकडे लेखी पत्राद्वारे केलेली आहे. का बरं त्या परिसरातल्या नागरिकांना काय त्यांची परिस्थिती काय आहे? नाही आता सध्या नागरिक एवढा त्रस्त झालेला आहे. सध्या गोरगरीब जनता हाताला काम नाही आणि त्यांना जगणंसुद्धा मुश्किल झालेलं आहे. विविध ठिकाणी प्रशासनाच्या माध्यमातून सहकार्य करत आहे प्रशासन, पण पाणी हा आपल्या जीवनाचा अमूल्य घटक आहे. त्यामुळे पाण्याशिवाय सर्वसामान्य नागरिक जगू शकत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने त्यांना मोफत पाणी देण्यात यावं अशी वार्ड क्रमांक 95च्या वतीने मी मागणी करत आहे. आपण आयुक्तांना सुद्धा पत्र दिले का? आयुक्तांना सुद्धा दिलेले आहे आणि शहर अभियंत्यांना सुद्धा दिलेलं आहे. फक्त आमची एकच मागणी की जे हमीपत्र घेत आहे महापालिका त्यांच्याकडून पुन्हा पाणी पैसे भरून घेण्याची ती जाचकाट त्यांनी रद्द करून मोफत पाणी पुरवठा करण्यात यावा एवढीच मागणी. आपलं नाव? माझं नाव राजाराम सकाराम मोरे, वार्ड नंबर 95, नगरसेविका ज्योतिताई मोरे यांचे पति. मुक़द्दस माह रमज़ान के आगाज़ पर कुछ अफराद गाड़ियों पर सवार होकर माइक के ज़रिए नौजवानों को घर में रहकर इबादत करने की तलक़ीन कर रहे हैं. नाज़रीन, मुक़द्दस माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है. आज 3 रमज़ान भी गुज़र चुका है. बंदगान तौहीद अल्लाह के हुक्म पर इस महीने रोज़े रखते हैं. 5 वक्ता नमाज़ों के साथ नमाज तरावी का भी एहतमाम करते हैं. मगर चूँकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, जिसके लिए हुकूमत ने समाजी और मजहबी तक़रीबात पर पाबंदी लगा दी है. लिहाजा उलमा इकराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला किया है कि लोग मसाजिद की बजाय अपने अपने मकानात पर ही तमाम नमाज़ें अदा करें. अवाम में इस पैगाम को आम करने की गर्ज से कुछ लोग 2 व्हीलर गाड़ियों पर मोहल्ला मोहल्ला घूमकर नौजवानों को इस पर अमल करने की नसीहत करते दिखाई दे रहे हैं. भाई हम लोग जो है इंदिरा नगर न्यू बैजीपुरे के अंदर हर गली के अंदर घूम के ये ऐलान कर रहे हैं कि जो लोग सलाब के ऊपर नमाज़ पढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं कि वो सलाब के ऊपर नमाज ना पढ़े. केंद्रेकर साहब उनका आदेश है कि अगर टेरिस के ऊपर नमाज़ पढ़ते टाइम अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी. और दूसरी मेन बात कि अपने रोशन गेट के ऊपर जो सूद गिरने के अंदर जो फ्रूट का बंदोबस्त रखा गया है फ्रूट के गाड़ियों का, तो जहाँ तक कोशिश हुई कि अपने गली के अंदर ही फ्रूट ख़रीद ले कि सिटी के अंदर जाने की कोशिश ना करे. और अगर सिटी में जाना भी है तो एक घर से एक ही सदस्य जाए, ना कि 2 जने. अगर 2 जने अगर जाते हैं तो उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनेगी. उससे अच्छा एक ही जना जाए, एक घर से एक ही मेंबर जाए. आप लोगों से इतनी गुजारिश है. और अगर मार्केट में जाते भी है तो मुंह को मास्क लगा कर जाए, बगैर मास्क का ना जाए. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे बागात में खिदमत अंजाम देने वाले माली और दीगर मुलाजिमीन अपनी जान जोखम में डालकर पौधों को परवान चढ़ाने में मसरूफ़ हैं. वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा दीगर सरकारी व नीम सरकारी दफातर के कई मुलाजिमीन ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और पर्दे के पीछे रहने के सबब कभी उनका नाम सामने नहीं आता. मगर MCN की हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि वो हर शहरी को इंसाफ दिलाए. लिहाजा शोबे बागात में खिदमत अंजाम देने वाले माली और दीगर मुलाजिमीन की खिदमत का एतराफ़ न करना भी उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी. इसीलिए हमने सिद्धार्थ गार्डन पहुंचकर यहाँ पौधों को परवान चढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करने वालों की फ़ोटोग्राफ़ी की, ताकि अवाम उन लोगों को भी याद रखे जिनकी काविशों से बागात हरे भरे रहते हैं. अगर ये लोग काम करना बंद कर दें तो धूप की तमाज़त से पेड़ पौधे जल जाएंगे और फिर तफरी गाहों की जगह शहरियान को वीराने और खंडर दिखाई देने लगेंगे. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर. आज फिर आसिफिया कॉलोनी की एक 39 साला खातून की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए आई मुस्बत. मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 52, एक 60 साला मरीज़ा की मौत वाक़ई.
तो 17 साला मरीज सेहतयाब हो जाने के बाद किया गया डिस्चार्ज। मारूफ फिल्म अदाकार शाहरुख खान ने दिए एएमसी हेल्थ इंतजामिया को 2500 PPE किट्स। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर और इंतजामिया की परेशानी हुई दूर। मौजूदा म्युनिसिपल बॉडी की मियाद हो रही है खत्म। रियासती इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेटर नामजद करने का दिया मशवरा। एएमसी इंतजामिया को हुकूमत के फैसले का इंतजार। और मुक़द्दस माह रमज़ान का पहला अशरा है जारी। अल्लाह की रहमतें लूटने का है मौका। फजूल कामों में वक्त गुजारी की बजाय बंदगाने तौहीद रखे खुद को इबादतों में मसरूफ। मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन का मशवरा। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक मैं गौस मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।